شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ شخص مجھے مل جائے جس نے اللہ کے راستے میں خیرات کی ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ پوری زندگی مجھے کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جس بندے نے اللہ کے راستے میں خیرات کی ہو، اللہ کے راستے میں دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ مجھے ایسا بندہ نہیں ملا۔ کریم نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے درمیان اور دوزخ کے درمیان، دوزخ کی آگ کے درمیان دیوار بناؤ، بے شک ایک روٹی کے ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ ایک روٹی کا جو ٹکڑا ہے وہ بھی آپ کو دوزخ سے دور کر دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سائل کو بندہ ہدیہ دیتا ہے، پکانے والی عورت، اس کا خامد، گھر والا، مالک جو حکم دیتا ہے، اور اس کا وہ نوکر جس کو کہا جاتا ہے کہ دے کے آ، اللہ رب العالمین ان تینوں کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم خیرات کرتے ہو تو وہ سائل کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے وہ بلا کیف جو اللہ کا ید ہے اس تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ پھر تمہارے جو صدقے ہوتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں پالتا ہے، جیسے تم بچھیروں کو پالتے ہو۔ ایک مٹھی جو جو ہے یا ایک مٹھی جو خیرات ہے وہ پلتے پلتے بہت پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پھر مذمت فرمائی جو سوال کرتا ہے۔ ایک دفعہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھا بھی ہوتا ہے، وہ بھی مسجد میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، سوال سے بچا جائے۔ شرعی ہے سوال، وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، تو ایک وقت کی روٹی وہ سوال کر سکتا ہے۔ اور جو بندہ سوال کی عادت بنا لیتا ہے تو میدان محشر میں اس طرح اٹھایا جائے گا اس کے منہ کے اوپر ماس نہیں ہوگا۔ یہ جو سوال کرنا ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنی جو اس کو مسئلہ ہو وہ چھپا لے اور کسی کو نہ بتائے سوائے اللہ کے، اور اللہ سے بارگاہ میں عرض کرے، اللہ رب العالمین اس کو تھوڑے عرصے میں غنی فرما دے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک رواج بن گیا، ایک طریقہ بن گیا، ایک دوسرے سے ملیں گے، کیا حال ہے جی، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، دوسرے لمحے کہہ دے گا سناؤ کاروبار کا کیا حال ہے، آخے گا جی الحمدللہ شکر ہے، پر حالات کوئی نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے گا، معاملات بڑے عجب ہو گئے، معاملات یہ ہو گئے۔ اور بعض دفعہ تو لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ استغفر نقل کفر نہ کفر باشد اللہ ساڈے کرو کی ہے۔ کفریہ جو لفظ ہیں جس کے کہنے سے بندہ جو ہوتا ہے وہ اسلام سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اس میں بعض بندے کہتے ہیں جو بندہ بھول کے آ دے وے، بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ بندہ اگر بھول کے طلاق آنا ہے تو طلاق تو ہو جاتی ہے۔ اب بڈھی کی عزت وہ نہیں ہے جو نیک لوگوں کی عزت ہے، اور نیک لوگوں کی بھی عزت نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کی عزت ہے، اور نبی کے صحابہ کی وہ عزت نہیں ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت ہے، اور جو اللہ کی عزت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بھی بڑی عزت ہے۔ لیکن اس میں
शरई मसला इस तरह है कि अगर कोई बंदा अल्लाह की बेअदबी करता है, वो कहता है मेरी तौबा, तो काजी को हक हासिल है, काजी को कह देगा तुझे तौबा, तूने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली। लेकिन अगर कोई बंदा नबी की बेअदबी करेगा तो वो काजी को हक हासिल नहीं है कि वो उसकी बेअदबी माफ कर दे, काजी उसको सजा दे देगा। मुंह से ये लफ्ज ऐसे निकालने। कई दफा मैंने ये बात की, ये अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक बंदे ने रोटी खाने लगा, उसकी बीवी ने उसके सामने मुर्गी रखी, सलाद रखी और बहुत सारी चीजें, दस्तरखान सजा दिया। औरत बड़े सलीके वाली थी। ऐन जिस वक्त उसने लुकमा तोड़ने लगा, दरवाजा किसने खटखटाया? अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मर्द ने अपनी बीवी से कहा पता करो कौन है। जब दरवाजा खटखटाया, उसने कहा जी कौन? बंदे ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, अल्लाह के लिए मुझे रोटी दे दे। ये है शरी। ये जो हमारे होते हैं ना, वो फकीरों ने चोलियां पहनी होती हैं और जनाब वो शरी फकीर नहीं है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बारगाह में एक बंदा आया, उसने कहा जी कि मुझे कुछ दें। तो आपने कहा कि ये तेरे पास जो पहले तेरे पास है ये कहाँ से लिया? वो कहते और जगह से लिया। आपने वो छीन के बैतुल माल के घोड़े के सामने डाल दिया। मैं कि तू तो है वो मांगने वाला है। इस्लाम जो है वो मांगने की मजम्मत करता है। इस्लाम मांगने की मजम्मत करता है। मेरे दादा मुशक्कार रहमतुल्लाह अलैह सीना खुदा सैफ रहमान पेर जो खुरासानी, अब एक दफा रावी नशीफ आए तो सारे मेहमानों के सामने सलात रखी, तो आपके सामने सलात नहीं थी। जब आपके सामने सलात नहीं थी तो बाद में जब बर्तन उठाने लगे तो आपको सलाद बड़ी पसंद थी। आपने मैं कि अपने सबको सलाद दी है, मैं फकीर को सलाद नहीं दी। सलाद की प्लेटें शुरू हो गई, सलाद हो गई। तो आपने बड़ा फिक्र अजीम फरमाया। मैं कि अगर मैं इस मुंह से मांगूंगा तो खाऊंगा किस मुंह से? दोनों तरबियतें कर दी। एक ये तरबियत कर दी कि मुरीद को चाहिए कि पीर का ख्याल करे, शागिर्द को चाहिए कि उस्ताद का ख्याल करे, बेटे को चाहिए बाप का ख्याल करे। और दूसरी तरबियत ये कर दी कि सवाल जो है वो हराम है। अगर इस मुंह से मांगूंगा कहूंगा तो खाऊंगा किस मुंह से? नहीं खाई। ये हमारे यहाँ आज रिवाज बन गए। लोग बातों बातों में कह देते हैं अच्छा फलां काम फलां काम फलां काम, और बहाने बहाने से कह देते हैं कि जनाब तेरी फलानी शाह जड़ी ना, वाह जी वाह क्या बात है, वाह जी वाह क्या बात है, वाह जी वाह क्या बात है। इमाम अहमद रज़ा खान फादर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, तो उसने क्या मुझे पैसे दो नहीं तो मैं तेरा मकान उल्ट दूंगा। अब मैं कि वैसे तो फकीरी से मांग तो ठीक है, धमकी से ना मांग, धमकी से मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। उसने कहा जी कि मैं मकान उल्ट दूंगा। आपने फरमाया कि मैं धमकी, ये जो तुम कह रहे हो मैं इससे डरने वाला नहीं, वैसे तुम कहो मेरी खिदमत कर दो मैं कर देता हूं। आपने अपनी जूती उल्टी कर दी। तो मैं तो मेरी जूती को सीधी कर दे तो मैं तुझे दिया दे दूं, नहीं जूती सीधी कर सका। ये जो धमकियां होती ना, बड़ी अजब मामला। धमकी जनाब फलानी धमकी फलानी धमकी फलानी धमकी। दूसरी तरफ ये है कि जब कोई बंदा किसी अल्लाह के वली की बेअदबी करता है तो फिर बड़ी धमकी अल्लाह फरमाता है मैं उससे अल्लाह ने जंग करता हूं। ये दोनों चीजों को रखें। अल्लाह फरमाता है उसके खिलाफ मैं क्या करता हूं? अल्लाह ने जंग करता हूं। और अल्लाह ने जंग में क्या करता है? अल्लाह लड़ाई में क्या करता है? अल्लाह पाक उससे ईमान ले लेता है। अल्लाह किसी की टांग नहीं तोड़ता, किसी के अल्लाह पाक उसके फिर ईमान वाला मसला हो गड़बड़ हो जाता है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह, बात लंबी हो गई। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मर्द ने कहा मुझे भूख लगी है। वो आके अपने मियाँ से कहा कि मुसाफिर है बेचारा, भूखा है, कहता है कि मुझे अल्लाह के लिए एक रोटी दे दे। उसने कहा कि उसको कहो चला जाए यहां से, हमारे घर में अल्लाह के लिए कुछ नहीं है। बीबी ने जाके बंदे को कह दिया, वो बंदा चला गया। ये बंदा था, इसके हालात खराब होना शुरू हो गए। हालात खराब होते 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 नौबत यहां तक पहुंच गई कि अपने घर के पाले बेच दिए, चतीनियां बेच दी, ईंटें बेच दी, बेचते रहे बंदा खरीदता रहा।
आखिर बीवी को तलाक दे दी। वो बीवी ने आगे जाके शादी कर ली। जब आगे शादी कर ली तो वो वहां पे भी जो एक बंदा था वो जिससे शादी की, वो भी उसी तरह, उसको भी खाना उसी तरह दिया। आगे मुर्गी भून के रखी, सलाद रखी, रोटी रखी, बाहर किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। उसने कहा कौन, पता करो। बीवी गई, उसने कहा कि वो बंदा है, वो कहता है कि मुझे भूख लगी, अल्लाह के मुसाफिर हो, अल्लाह के लिए मुझे कुछ दें। उस बंदे ने जल्दी से वो मुर्गी पकड़ी, साथ रोटी पकड़ी, सलाद पकड़ी, बीवी के हाथ में दी, जाओ जल्दी दे के आओ उसको। जब वो बीवी उसके हाथ में रोटी रखी, बीवी चीख मार के वापस पलटी। ये बंदा भी खड़ा हो गया, बीवी की तरफ दौड़ा, खैर तो है, तू अल्लाह की बंदी डर क्यों गई है, क्या हुआ तुझे, चीख क्यों मारी है? उसने कहा जो हमारे घर में मांगने के लिए आया, पता कौन है? कि नहीं। उसने कहा वो फलां सेठ है जिसकी पहले बीवी हुआ करती थी, वो आज हमारे दर पे मांगने के लिए आ गया। उसने कहा तूने उसको पहचान लिया? मुझे नहीं पहचाना, इतना अरसा हो गया मैं तेरे साथ रह रहा हूं। नहीं, क्योंकि मैं भी वही बंदा हूं जो तुम्हारे काम मांगने के लिए गया था। मैं कहा था मुझे अल्लाह के लिए कुछ दें, तो इस बंदे ने कहा था कि अल्लाह के लिए हमारे घर में कुछ नहीं, अल्लाह ने बमा बीवी सारा कुछ मुझे दे दिया। ये जो मकान बने हैं, ये जो दरवार बनी है, ये ईंटें बनी है, ये सारी उसी घर की इधर लगाई हुई है। इसलिए हमारे यहाँ सदका और खैरात का रवाज बड़ा खत्म हो गया। पहले हमारी जो माएँ थी वो गली के कुत्ते के लिए भी रोटी रखती थी। जब से बंदे पढ़ लिख गए, हिसाब किताब बड़ा आम हो गया, अब ज़कात नहीं देते, अब उशर नहीं देते। अब पहले जो गांव होते थे ना, गांव, इतने गांव इधर हम जाते थे अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ बचपन में। किसी मुरीद ने दावत करनी, उस वक्त जाना, या किसी ने बीमार हो जाना तो ये वैसे वालिद साहब के साथ चले जाना, या कुछ शादियों में चले जाना। तो एक गांव होता था, वहां पे बड़ी आबादी होती थी, बड़ी आबादी होनी। बल्कि ये जो पक्षीवास लोग होते थे, ये भी गांव के साथ पक्षियां लगा के बैठे होते थे। तो वो राज साहब ने, चौधरी साहब ने बड़े फख्र से कहना, जी साड़ी राया है जी। अब जाते हैं तो पूरा गांव खोले बना पड़ा है, पूरा गांव। भाई चौधरी साहब, मियां साहब, ये बंदे किधर गए? बड़े लोग होते थे, चले गए जी। वजह ये है कि इनकी दिल की नीयतें बदल गई। पहले कई ऐसी औरतें जो अपने नौकरों से इतना प्यार करती थी कि अपने घर से उनके लिए वो देसी घी की परोठे पका के तो उनको देती, और बाद दफा ये कहती कि पुत्र हुण खूत ना जाए, इत्थे सौ जाओ, बाहर बह जाओ, मंजियां बिछा लो, इत्थे सौ जाओ। वो जो तकसीम करने वाला सिलसिला था। अब बच्चियां पढ़ गई बड़ी, वो मीन आउंदियां दसदियां ने कि तेरी मां इन्नियां रोटियां खांदी है, तेरी भैणां इन्ना खांदियां ने, तेरा चाचा इन्ना खांदा है, तेरा फलाना इतना खांदा है। हुण अब तुम इधर चले जाएं, जितने लोग देखेंगे आप, लोग गांव के गांव खाली पड़े हैं। तो बल्कि अब तुम हम जाते हैं तो वो गांव की निशानियां थी उनके जाने वाली, वो भी बारिशों से मकान गिर गए, वो भी मकान गिर गए, लोगों ने उठा लिया। अब बंदे, वजह क्या है? वजह ये है कि वो जो हमारे एक तल्लक था, एक सदका खैरात का, एक देने का, वो हमारे यहाँ खत्म हो गया।